everyone. Start broadcast. Welcome to today's session. Welcome to today's session. Hope everyone and thank you so much for joining today. Let's just start with the session. So today's topic is the payroll strategies, which will really help everyone to simplify their payroll processes. For especially these strategies are designed for startups and SMEs. So everyone is requested to, if they want to note down any kind of thing, they can note down, or even at the end of the session, they can ask the questions. And I just invite today's keynote speakers, Mr. Mohammed Pudiwala and Mr. Chintan Prajapati. So yeah, let's just start this session without any ado. So handing over the session to Mr. Mohammed Puliwala. Thank you, Sonia. My name is Mohammad Buliwala from Business Development Department. So today's topic is payroll strategies, the new key to simplify all your payroll process in HR department for the startup and SME. So the agenda of the webinar, first we discuss about the importance of HR function to SME as well as startup company. Then we discuss about the hurdles in traditional payroll process. Third, we discuss about the myth about the payroll process. Then benefit of payroll software to SME as well as startup companies who have around employee strength around 50 to 100 or maybe 200 employees. Then strategies to simplify payroll process. Then last, we discuss about how our solution or how our software can help to simplify your payroll process or HR policies in our software. So firstly, we discuss about the importance of HR function to SME and startup company. Nowadays, if we see the HR role is very crucial for any organization. Most of the owner or MD thinking that HR only required for the larger company or you can say for the mid-sized company. But no, for small company also HR function is very important. These are the some points because of the policies, because of the culture, internal employee culture to build properly fruitful. For that purpose, you require the HR manager or a HR executive to simplify the employer as well as employee relationship. Second thing, dealing with the compliance and employee issue. Probably these are the two major challenges for the small company or maybe the you can say the startup company, because if any employee have any question or any doubt related to maybe the salary or maybe the timing, they not directly go to the owner of the company. So for that, there is a middle person required. So you require the HR guy who can give the proper solution to specific person. Third, correlation with business goal. Directly, this will impact the business goals because every business have their vision or a mission to grow the company, right? So for that, there is a if any issue related to the employee, maybe the related to the payroll, maybe the salary, related to the timing, related to the leave, this all question we cannot directly go to the owner and you like have a like input from the owner side. So for that, you require the HR person or a HR department to solve this kind of issues. And fourth point, communication medium and conflict resolution. This is very important nowadays. Even may you can say the big company also have their specific HR guide who have a discuss about the conflict session every weekly or a monthly. They have a conflict session with their employee. What are the hurdles? What are the you require environment to work in a company? So these things you require proper HR guy who have a give their input or receive the idea from the employee side and put to management. So for that you require HR function or a HR department. Last, employee satisfaction and budget control. Obviously, for longer term business have their goal like to may have the profit or may have the larger volume of the business. For that you have to handle your employee. So
you handle proper employee, then you will get obviously good business from market. For that, firstly, you have to satisfy with your existing employee, right? For that, you require HR activity, HR process smoothly in your company. Last, budget control. Why budget control? Because if there is a no HR or there is a no any manager to handle the manpower, if you require any wrong person in a company, right, for that directly impact your budget. Because if any employee you hire in a company, maybe 20,000 you are given, but that person don't have a proper, you can say, the knowledge or a roles for their specific task. So for that, HR have their mindset, their knowledge to screening that specific prospect, right? So for that, you require the HR. So these are the importance function that I have just brief you about the startup company, or maybe the, you can say, the SME. Now, what are the hurdles for the payroll processing? Maybe if we see today, today's market in even Gujarat, most of the company are doing manually payroll process, maybe through Excel or maybe through manual, through maybe the bookkeeping, right? So for that, these are the hurdles they are currently facing. First, time consuming, obviously. If you're doing manually work, or if you are doing the through Excel sheet work, right? So these are the some, you are just like attend the attendance, marking the like timing, right? So these are the some, you can say, the wastage of time, then duplication of work, obviously. if कोई एग्जाम्पल मैनेजर होता है, राइट, सो जो भी वो एग्जाम्पल टाइमिंग नोट करता है या तो लीव लिखता है, राइट, रिसिप्ट वगैरह में, तो वो डुप्लीकेशन वर्क होता है, क्योंकि उसका इवन जो पेपर वर्क होता है वो भी ज्यादा होता है, राइट. सो उसमें उसका टाइमिंग इन्वेस्ट ज्यादा होगा. दीज आर द सम स्मॉल एक्टिविटी. देन सेकंड, सिक्योरिटी एंड सेफ्टी. ऑब्वियसली कोई एचआर होगा जो एक्सेल के थ्रू काम करता है या तो वो बुक में मेंटेन करता है, तो कोई सिक्योरिटी नहीं रहेगी, कोई सेफ्टी नहीं रहेगी. डेटा वो कहाँ भी मैनिपुलेट कर सकता है वो डेटा को. सो फॉर दैट यू रिक्वायर प्रॉपर सॉफ्टवेयर, राइट. थर्ड इज ह्यूमन एरर. ऑब्वियसली कोई भी पर्सन होगा खुद से पेरोल प्रोसेस करता है या जो भी सैलरी वगैरह हैंडल करता है, राइट, सो वो मिस्टेक कर सकता है, क्योंकि वो कैलकुलेट करेगा, मे बी एक्सेल के थ्रू करेगा या तो कैलकुलेटर के थ्रू करेगा, तो वो एरर कर सकता है. 50 एम्प्लॉय का 20 एम्प्लॉय की वो सैलरी करेगा, कितने दिन आया, क्या उसका ओवर टाइम रहा, कितना जल्दी आया, कितना लेट आया, तो वो सब मैन्युअली होगा तो प्रॉपर हैंडल नहीं कर पाएगा, और उसमें चांसेस है कि एरर आ सकता है, राइट. सो दीज आर द हर्डल्स. देन ट्रैकिंग एक्यूरेट टाइम अटेंडेंस. ये सबसे मेजर एक अभी हर्डल्स आती है हर एचआर को, बिकॉज उनके पास बायोमेट्रिक मशीन होता नहीं है, वो मैन्युअली अटेंडेंस लेते हैं, उसका टाइमिंग कैप्चर करते हैं कि वो कितने बजे आया, कितने बजे गया. और ये सबसे ज्यादा आप देखोगे तो स्मॉल कंपनी में सबसे बड़ा एक हर्डल्स होता है, जहाँ पे 40 लोग 50 लोग वर्कर्स होते हैं, और उनका टाइमिंग एक बुक पे वो लोग रखते हैं कि 9:30 को आया, 9:50 को आया है, तो 10-15 मिनट आगे पीछे होती है. और आप ओवरऑल जब मंथ में देखने जाओगे तो 20-30 दिन का आपको, यानी आपका एक लॉस हो सकता है सैलरी का, आप प्रॉपर मेंटेन नहीं करोगे. तो उसके लिए अभी मोस्ट ऑफ कंपनी वो जाते हैं अटेंडेंस मशीन में जाते हैं, क्योंकि उनको एक एक्यूरेसी मिलेगी. वो भले 10-15 हजार का एक इन्वेस्टमेंट करेंगे, लेकिन उनको पता है लॉन्गर टर्म में वो फायदा होगा, राइट. देन टैक्सेस आर रिलेटेड इश्यू, बिकॉज इफ यू आर हैंडलिंग लाइक अभी तो जो भी 30 से ज्यादा एम्प्लॉय की स्ट्रेंथ है, तो मे बी द पीएफ एप्लीकेबल, ईएसआईसी एप्लीकेबल. सो दीज आर द थिंग्स इफ यू मेंटेनिंग इन अ मैन्युअल वे. सो आपको चांसेस है कि आप कुछ मैनिपुलेशन हो सकता है, कुछ मे बी डेटा में क्वेरी आ सकती है, तो वापिस आप वो टास्क करोगे, तो उसमें ही एचआर बिजी रहेगा. So these are the hurdles for traditional method. If you currently doing the salary, maybe the Excel or maybe the paperwork, so these are the hurdles. वो mostly छोटी कंपनी में ज्यादा होता है, क्योंकि वो चाहते हैं कि पेरोल की क्या जरूरत है, right? So these are the major issue. For example, क्योंकि लेबर लॉ भी एप्लीकेबल होता है, right? Then statutory लॉ भी एप्लीकेबल होते हैं, और वो मैन्युअली होगा तो बहुत सारा टाइम इन्वेस्ट होता है और रिजल्ट भी नहीं मिलता है. Now we move for the myth. What are the myth about the payroll software? अभी मैंने मोस्टली देखा है कि जहाँ पे स्ट्रेंथ कम होती है एम्प्लॉय की, या तो वो डिसीजन मेकर डायरेक्टर जनरली होते हैं, या तो जो भी ऑपरेशन हैंडल करे, हु आर द अथॉरिटी टू परचेस एनी सॉफ्टवेयर. तो उनकी एक मीथ होती है कि पेरोल तो जस्ट एक सैलरी कैलकुलेट करता है, बट ऐसा नहीं होता है. पेरोल में बहुत सारी चीज और होती है. लाइक आप देखोगे तो अटेंडेंस कैप्चर करेगा वो,
कि टाइमिंग क्या रहा, आउटपुट कैप्चर करेगा उसका कि एक्चुअल उसकी शिफ्ट टाइमिंग ये है लेकिन बंदा इतना काम कर रहा है, उसकी एक्चुअल प्रोडक्टिविटी क्या है, वो आप मैन्युअल में जाओगे तो कुछ पता ही नहीं चलेगा। सो दीज आर द मिथ के पेरोल तो एग्जांपल सिर्फ सैलरी कैलकुलेट करता है, लेकिन ऐसा नहीं है। बहुत सारी चीज है जो पेरोल सॉफ्टवेयर हैंडल करता है। जैसे आप देखोगे तो एग्जांपल उसका टाइमिंग हो गया, ओवर टाइम हो गया, उसका लीव बैलेंस अमाउंट क्या हो गया, उसका सैलरी कैलकुलेशन तो है ही, एज वेल एज एग्जांपल आप देखो कॉम्प ऑफ क्या है, उसका ट्रैवल एक्सपेंस क्या है, क्लेम एक्सपेंस क्या है। देन आप रिपोर्ट, ग्राफिक रिपोर्ट्स देख पाओगे, उसके एमआईएस रिपोर्ट्स देख पाओगे, एम्प्लॉय का डेटा कभी भी आप उठा सकते हो फॉर द फ्यूचर एस्पेक्ट। सो बहुत सारी चीज पेरोल में रहती है, जस्ट सैलरी कैलकुलेशन नहीं होता है। देन सेकंड पॉइंट, मोस्ट ऑफ मैनेजमेंट सोचते हैं कि अननेसेसरी एक्सपेंस है, अननेसेसरी नहीं है। और कई लोग तो ऐसे ही बोलते हैं कि एचआर इट्स नॉट फ्रूटफुल डिपार्टमेंट, बट ऐसा नहीं है। एचआर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट है फॉर एनी ऑर्गेनाइजेशन, ऐसा नहीं फॉर बड़ी कंपनी के लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन छोटी कंपनी है, स्टार्टअप है, उनके लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है। बिकॉज वो एम्प्लॉय के साथ उनका रिलेशन होता है, क्योंकि एम्प्लॉय ही अल्टीमेट जो रिसोर्स होते हैं जो कंपनी को आगे बढ़ाते हैं। तो उनके हैंडल करने के लिए आपको एक पर्सन भी चाहिए एज वेल एज एक सॉफ्टवेयर भी चाहिए जो प्रॉपर पूरा डेटा एज वेल एज जो स्मूथ लाइन होती है एचआर का फंक्शन वो स्मूथ करेगा। थर्ड, कई लोग ऐसे सोचते हैं कि इफ यू परचेज पेरोल सॉफ्टवेयर सो रिक्वायर सिस्टम रिक्वायर होती है, फिर उसमें टाइम इन्वेस्ट ज्यादा होता है और उसमें मनी भी ज्यादा होता है सॉफ्टवेयर खरीद। तो अभी ऐसा नहीं है, क्योंकि जैसे अभी मोस्ट ऑफ द ड्यू टू कोविड में आप देखोगे तो मोस्ट ऑफ कंपनी अभी क्लाउड में जा रही है, क्योंकि अब वहां पे एक आईटी डिपार्टमेंट की जरूरत नहीं पड़ती है। वहां पे जो भी एचआर है वो अपना जस्ट एक यूआरएल डाल के पूरा पेरोल सॉफ्टवेयर आराम से यानी प्रोसेस कर सकता है। तो इजी वे टू ऑपरेट एनी पेरोल सॉफ्टवेयर, सो दैट इज अ मेन थिंग। तो ये मीट होता है, डायरेक्टर्स का मीट होता है या तो मैनेजमेंट का मीट होता है कि उसमें टाइम ज्यादा जाता है, वेस्ट ऑफ मनी है। लेकिन आप लॉन्ग टर्म देखोगे, 4 साल 5 साल बाद के उसका जो आरओआई देखोगे तो आपको ज्यादा मिलेगा, ड्यू टू उसमें क्या होगा कि आपकी सैलरी जो रहती है वो एक्चुअल आपको प्रोसेस करके देगी विद इन अ फ्यू सेकंड्स। सो एक बड़ा एडवांटेज है। देन बी टीम हार्डवेयर, ऐसा भी होता है कि टीम की जरूरत पड़ती है उनके लिए पेरोल प्रोसेस करने के लिए, हार्डवेयर की रिक्वायरमेंट होती है, बट ऐसा नहीं होता है। अभी आप देखोगे अभी टुडे सिनेरियो में मोस्ट ऑफ द कंपनी वो लोग क्लाउड में जाते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि उसके लिए मुझे कोई बंदा रखने की जरूरत नहीं पड़े, उसके लिए मुझे कोई आईटी डिपार्टमेंट रखने की जरूरत नहीं पड़े या मुझे सर्वर की नहीं जरूरत पड़े। तो स्मॉल कंपनी भी अभी डेस्कटॉप एज वेल एज क्लाउड सॉफ्टवेयर में जाती है। तो ये भी एक मीथ है कि चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। यू कैन जस्ट हैव ए विद इन अ फ्यू डेज में आप लाइव हो सकते हो यानी कि पेरोल सॉफ्टवेयर में। तो उसके लिए कोई हार्डवेयर की भी जरूरत नहीं है, कोई टीम की भी जरूरत नहीं, जो आपका एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय है वही पेरोल आराम से ऑपरेट कर सकता है। देन लास्ट पॉइंट, मोस्ट ऑफ जो स्टार्टअप कंपनी होती है या तो जो स्मॉल साइज की कंपनी है वो ऐसा सोचते हैं कि पेरोल तो उनको जरूरत होती है जहाँ पे एम्प्लॉय की स्ट्रेंथ ज्यादा होती है, जहाँ पे मल्टीपल लोकेशन होते हैं, मल्टीपल ब्रांचेस होती है, उनको जरूरत होती है क्योंकि वहां पे स्ट्रेंथ ज्यादा है। लेकिन ऐसा नहीं है। अभी आप देखोगे तो 5 एम्प्लॉय की भी कंपनी होती है या 50,000 एम्प्लॉय की भी कंपनी होती है, वो लोग भी पेरोल लेते हैं। उसका रीजन वही है कि दे वांट डिजिटलाइजेशन, ऑटोमेशन फॉर देयर एचआर फंक्शन। आप सपोज कोई भी एचआर होगा जो छोटी कंपनी में कार, वो नहीं चाहेगा कि मैं पेरोल में ही वहां पे ही रहूं, वो दूसरी एक्टिविटी भी करना चाहता है कि उसका जो एम्प्लॉय वो इनहांस हो, वो आगे बढ़े, ट्रेनिंग डेवलपमेंट में जाए। तो उसके लिए आपको स्मूथ प्रोसेस करने के लिए यू रिक्वायर द पेरोल सॉफ्टवेयर। नाउ लेट्स सी अबाउट द बेनिफिट ऑफ द पेरोल सॉफ्टवेयर टू एसएमई। एसएमई और स्टार्टअप, आप जैसे बोलोगे 10 एम्प्लॉय है या 50 एम्प्लॉय की जो भी कंपनी है, राइट। सो उनके लिए पेरोल क्या बेनिफिट हो सकता है आप इंप्लीमेंट करोगे। सो फर्स्टली, पेरोल जो होगा विद इन अ फ्यू सेकंड में आप यानी कि विद इन अ फ्यू मिनट आप कह सकते हो कि पेरोल यानी कि सक्सेसफुली प्रोसेस हो जाएगा और सैलरी जो होगी वो तुरंत एम्प्लॉय के अकाउंट्स में आ जाएगी। सो दीज आर द बिग एडवांटेज। आप जैसे एक्सेल में करते हो तो इट टेक्स टाइम्स, क्योंकि उसमें कैलकुलेशन वगैरह देखना पड़ता है कि कौन से एम्प्लॉय ने कितनी सैलरी गई, कितना काम किया है, वो सब आपको क्रॉस चेकिंग करनी पड़ती है। उसमें टाइम लग सकता है और उसमें एरर आ सकती है। तो पेरोल में जाओगे तो 50 एम्प्लॉय या 100 एम्प्लॉय है तो विद इन 5 मिनट में आप सैलरी डिस्पैच कर सकते हो। तो इतना यानी प्रोसेस फास्ट हो जाएगी आप पेरोल इंप्लीमेंट करोगे। सेकंड, automatic calculation of taxes statutory reports, obviously maybe the pf, maybe the esic, maybe the tds, lwf, these are the statutories. For that this can be all automation through the payroll software। आपको उसके लिए जो भी आपको रिपोर्ट्स चाहिए या तो जो भी फाइनल आपको फाइल्स चाहिए वो सब
सॉफ्टवेयर में से आराम से आप हैंडल कर सकते हो, बट उसके लिए पेरोल जरूरी होता है। सो दीज आर द बेनिफिट्स। यही यही चीज में कहीं एचआर लोग 5 दिन 6 दिन लगाते हैं फॉर जस्ट फॉर पीएफ एंड ईएसआईसी के लिए, तो वही चीज आप तुरंत सॉफ्टवेयर में से निकाल सकते हो। थर्ड, टाइम एंड अटेंडेंस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर स्मॉल कंपनी के लिए, क्योंकि वहां पे टाइम अटेंडेंस बहुत क्रुशियल होता है, और स्पेसिफिकली जहाँ पे वर्कर्स लोग ज्यादा होते हैं, क्योंकि वहां पे ओवर टाइम भी आता है। ओवर टाइम कहाँ पे एग्जांपल देते हैं, तो उसका जो कॉस्टिंग वगैरह जो रहता है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट होता है फॉर मैनेजमेंट पर्पस से, तो उसका भी आप ऑटोमेशन कर सकते हो सॉफ्टवेयर में। जो भी ओवर टाइम का रिपोर्ट निकलता है, जो भी ओवर टाइम का कॉस्टिंग निकलता है, उसका सैलरी का उसने कितना पे लिया है एग्जांपल, राइट, तो और उसके रिपोर्ट्स भी आपको मिल जाते हैं कि एक्चुअली उसने कितना काम किया है शिफ्ट के हिसाब से। और मल्टीपल शिफ्ट भी होती है कहीं पे, भले वो 40 या 50 एम्प्लॉय की स्ट्रेंथ होती है, लेकिन मल्टीपल शिफ्ट में वो काम करते हैं, क्योंकि उसका उसका जो बिजनेस का नेचर ऐसा होता है कि 24/7, तो वहां पे भी दिक्कत आती है। सपोज आप मैन्युअल एग्जांपल पेरोल प्रोसेस कर रहे हो, तो आपके पास सॉफ्टवेयर होगा तो ये एडवांटेज आपको मिलेगा कि आपको कॉस्टिंग एनालिसिस कर पाओगे आप कि कितना कॉस्टिंग हो रहा है मेरा पर एम्प्लॉय, राइट। देन आफ्टर एम्प्लॉय डेटा बैंक, एम्प्लॉय डेटा बैंक मींस यू हैव ए योर डेटा फॉर एम्प्लॉय। कभी भी कुछ भी जरूरत है किसी एम्प्लॉय को, आपको डेटा फाइंड करना है, एग्जांपल उसका कॉन्टेक्ट नंबर हो, चाहे आधार कार्ड नंबर हो, चाहे पैन कार्ड वेरिफिकेशन हो, कुछ भी हो, आपको कभी भी जरूरत है तो आप तुरंत सॉफ्टवेयर में से तुरंत निकाल सकते हो उसका रिपोर्ट। आप निकाल सकते हो और सबमिट कर सकते हो मैनेजमेंट को, कभी भी जरूरत पड़ी तो, एग्जांपल कुछ हुआ तो, राइट। देन आफ्टर टाइम सेविंग दैट हेल्प फोकस ऑन अदर एरिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सपोज एचआर मैन्युअली पेरोल प्रोसेस करेगा तो उसके 10-15 दिन तो उसमें ही चले जाते हैं, एग्जांपल सैलरी कैलकुलेशन भी चले जाते हैं। सपोज उसके पास सॉफ्टवेयर होगा तो एग्जांपल 2-3 दिन में तो पूरा वेरीफाइड करके प्रोसेस कर देगा, और बाकी का जो उसके पास टाइम बचेगा वो दूसरा जो एचआर का फंक्शन होता है, लाइक फॉर एम्प्लॉय एंगेजमेंट, एम्प्लॉय एनहांसमेंट, राइट, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, दीज आर द क्रूशियल रोल फॉर द एचआर पीपल, तो उसमें भी वो फोकस कर सकता है, राइट। देन एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन, ऑब्वियसली एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन ये क्यों लिखा है आप सोच रहे होगे कि उससे पेरोल से क्या बेनिफिट है। ऑब्वियसली देयर इज ए डायरेक्ट लिंक, क्योंकि सपोज कोई सॉफ्टवेयर होगा तो चांसेस है कि प्रॉपर पेरोल प्रोसेस हो, उसके अकाउंट में प्रॉपर सैलरी जाए, जो भी उसकी सैलरी मिल रही उस हिसाब से उसको मिले, उसको ओवर टाइम उस हिसाब से मिले, उसका कैलकुलेशन प्रॉपर हो, तो वो प्रॉपर कैसे हो सकता है, सॉफ्टवेयर के थ्रू हो सकता है, तो उसको एक सेटिस्फेक्शन मिलेगा कि उसकी ऑन टाइम उसको सैलरी मिल रही है। तो ये भी एडवांटेज है कि सपोज आपने डिसाइड किया है कि 3 तारीख 4 तारीख तक एम्प्लॉय या तो वर्कर्स के अकाउंट में सैलरी चली जानी चाहिए, तो उसके लिए आपके पास सॉफ्टवेयर होगा तो वो एडवांटेज मिलेगा, और एम्प्लॉय भी सेटिस्फाइड होगा कि मेरी कंपनी में मेरी सैलरी प्रॉपर डेट पे आ रही है, राइट। देन आफ्टर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्ट्रेटेजीज टू सिंप्लीफाई द पेरोल प्रोसेस। दीज आर द स्ट्रेटेजी, बिकॉज जैसे आप देखोगे कि स्मॉल कंपनी होती है या तो एग्जांपल स्टार्टअप कंपनी होती है, तो उनको बहुत दिक्कत होती है कि हम हमारा जो एचआर का प्रोसेस है हम कैसे उसको एक प्रॉपर वे में हैंडल करें, या तो किस हिसाब से हम प्लानिंग करें तो वो पूरा एक सिस्टमेटिक हम पेरोल प्रोसेस कर पाए और इजी वे हम एम्प्लॉय को खुश रख पाए। सो दीज आर द सम, मैंने जो ये बनाया एग्जांपल कि दीज आर द वे, राइट, you can simplify your payroll process. Firstly, be systematic, well organized. सबसे पहले तो आपका जो बिजनेस है, you have to understand your business nature, कि आपका बिजनेस नेचर क्या है, तो उस हिसाब से you have to define this, like कितने वर्कर्स है, कितना स्टाफ है, कितने कॉन्ट्रैक्ट पे है, so you have to systematic your employee grades, वो आपको ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा कि कौन सा एम्प्लॉय किस काम के लिए है, उसका रोल क्या है। सो सबसे पहले आपको जो स्ट्रक्चर होता है, जो हायरार्की होती है, वो एक प्रॉपर लेआउट में मेंशन करनी पड़ेगी, फर्स्ट। सेकंड, कीप द प्रोसेस सिंपल एंड इफेक्टिव, मींस कई जगह पे क्या होता है कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं, 40 एम्प्लॉय की भी कंपनी होती है, 50 एम्प्लॉय की भी कंपनी होती है छोटी सी, तो वहां पे पेरोल प्रोसेस जो होता है बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है। कॉम्प्लिकेटेड सेंस, कई लोगों का वो लोग आवर्स में सैलरी करते हैं, कई लोग का वो डेज में सैलरी करते हैं, कई लोग वो मंथली करते हैं, लेकिन ऐसा मत करो, क्योंकि आप एक इजी वे में रखो कि दीज आर द शिफ्ट, और इस हिसाब से आपका इतने आवर्स काम करने हैं, हाफ डे इस हिसाब से रहेगा, इससे आपको पेड मिलेगा, इतनी डेट है, तो आप एक पेपर पे पूरा आपका एक जो एचआर प्रोसेस होता है जिसको बोलते हैं मैन्युअल, राइट, या तो एचआर बुक होती है, वो एक आप डिफाइन कर दीजिए, यानी कि प्रोसेस सिंपल रखे और इफेक्टिव रखे। तीसरा, डिफाइन द पॉलिसीज क्लियरली एंड क्लासिफाई योर एम्प्लॉइज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइक
बहुत सारी कंपनी में तो ऐसा मैंने देखा है कि उनके पास पॉलिसी ही नहीं होती है डॉक्यूमेंटेड। मे बी तो अटेंडेंस की पॉलिसी देख लो, या तो अटेंडेंस में भी जैसे आप बता, जैसे होती है लेट मार्क की पॉलिसी होती है, अर्ली गोइंग की पॉलिसी होती है, हाफ डे की पॉलिसी होती है, कॉम्प ऑफ की पॉलिसी होती है। तो वो सब आपको डिफाइन करनी पड़ेगी, यानी बुक में, कि कितनी शिफ्ट है, कितने आवर्स होने चाहिए एक एम्प्लॉइज को, कितने आवर्स काम करेगा तो हाफ डे होगा, 10 मिनट 15 मिनट तक वो आएगा, उसके बाद आएगा तो लेट मार्क होगा। तो ये पॉलिसी पेपर पे होनी जरूरी है, वो क्लियरली डिफाइन होनी चाहिए। हर एम्प्लॉय को आप सर्कुलेट भी करनी जरूरी है, तो एम्प्लॉय को भी पता चले कि मुझे कितने बजे आना है, कितने बजे जाना है, राइट। देन क्लासीफाई योर एम्प्लॉइज। क्लासीफाई योर एम्प्लॉइज मींस आपको ग्रेड बनाने पड़ेंगे कि ये मेरे वर्कर्स है, ये मेरे स्टाफ है, ये मैनेजमेंट एम्प्लॉय है। तो आपको आप ग्रेड बनाओगे तो आपको पता चलेगा किस हिसाब से आपको पॉलिसी किसको एप्लीकेबल है या नहीं है, आपको डिफाइन करना पड़ेगा। फॉर ऑटोमेट एम्प्लॉय अटेंडेंस, ये भी इंपॉर्टेंट है। आपको पेरोल, आपको प्रोसेस इजी वे में करना है या सिंप्लीफाइड करना है, तो सबसे क्रुशियल चीज होती है अटेंडेंस, टाइम अटेंडेंस। तो उसके लिए वी आर सजेस्ट कि अभी बायोमेट्रिक मशीन जो आते हैं बहुत ही यानी कि नॉमिनल प्राइस में होते हैं एग्जांपल, तो बायोमेट्रिक अटेंडेंस मशीन रखिए। तो उससे क्या होगा कि आपको ऑटोमेशन हो पाएगा, आपको एक्यूरेसी मिलेगी टाइम में, कि कितने बजे जो भी एम्प्लॉय है या तो वर्कर है कंपनी के अंदर वो एंटर हो रहा है और कितने बजे वो बाहर जा रहा है, वो ऑटोमेशन हो सकता है। देन मेक सैलरी पेमेंट सिंप्लीफाइड, कीप ट्रैक ऑफ द होल प्रोसेस। ऑब्वियसली जो आप सैलरी पेमेंट करते हो एक सिंप्लीफाइड वे में रखिए। सिंप्लीफाइड वे में यानी क्या रहेगा कि जो भी आप सैलरी दे रहे हो तो एक कट ऑफ डेट रखिए प्रॉपर हर एक के लिए, कौन सी कट ऑफ डेट है, एज वेल एज वो भी आप, यानी कि जो मैंने इनिशियली बताया कि मंथली पेमेंट में जाना है या तो आवर्स के हिसाब से सैलरी करनी है या तो डे के हिसाब से सैलरी करनी है, तो वो आपको एक सिंप्लीफाइड करने की प्रोसेस। आप यूनिफाइड एक आप जो पेमेंट का प्रोसेस है तो यूनिफाइड रखिए, हर एक के लिए सेम एप्लीकेबल रखिए जितना हो सके उतना। आप हर एक के लिए अलग अलग करने चाहोगे तो बहुत कॉम्प्लिकेशन होगी, आपका जो पेरोल प्रोसेस होगा वो, राइट। सो वी आर सजेस्टिंग कि आप उसको सिंप्लीफाइड कीजिए और हर एक जो एक्टिविटी होती है उसका एक ट्रैक रिकॉर्ड रखिए। Then after plan for payroll related benefits and settlements, obviously जो भी HR होता है या तो HR मैनेजर या तो एग्जीक्यूटिव होता है उनको एक पता चलना चाहिए कि जो पेरोल आप प्लान कर रहे हो तो उसके बेनिफिट्स क्या है, उसके सेटलमेंट्स किस हिसाब से हमको करने हैं, तो हमारे जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय है दे आर हैप्पी, राइट। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट और उसको नॉलेज होना भी जरूरी है कि कौन से अलाउंसेस, कौन से डिडक्शन, आपको जो सैलरी स्ट्रक्चर है जो आप बना रहे हो किस हिसाब से आपको ऑर्गेनाइज करना है, तो उससे एम्प्लॉय को भी बेनिफिट मिले एज वेल एज एम्प्लॉयर को यानी कंपनी को भी कैसे बेनिफिट्स मिले, वो भी ध्यान रखना है। लाइक टीडीएस रिलेटेड कंपोनेंट्स वगैरह जो रहते हैं, रीइंबर्समेंट जैसे रहता है, क्लेम की पॉलिसी जो रहती है, तो बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं एचआर के अंदर, तो वो किस हिसाब से हमको सेटल करना है, किस हिसाब से प्रॉपर इंप्लीमेंट करना है एचआर या जो एचआर डिपार्टमेंट है, तो वो बहुत क्रुशियल, उनका नॉलेज होना जरूरी है। मार्केट किस हिसाब से जा रहा है, कौन से चेंजेस आए हैं रिसेंटली गवर्नमेंट की ओर से, तो वो सब नॉलेज होना भी जरूरी है। देन गेट अपडेट विथ लेटेस्ट पेरोल टैक्स कंप्लायंस, यानी कि जो भी अपडेट्स वगैरह आते हैं, क्योंकि हर 6 महीने में कुछ ना कुछ अपडेट्स वगैरह आती है, लाइक मे बी द रिलेटेड टू द पीएफ्स में कुछ अपडेट आती है, मे बी द ईएसआईसी में अपडेट आती है, प्रोफेशनल टैक्स में अपडेट आती है, राइट, परसेंटेज वगैरह चेंज होते हैं, मे बी रिपोर्ट्स लेवल पे चेंज होता है, लाइक टीडीएस में भी चेंजेस होते हैं, जैसे अभी है एक पुराना अपना जो टैक्स रिजिम चल रहा है, न्यू रिजिम टैक्स चल रहा है, तो उसको किस हिसाब से एम्प्लॉय को बेनिफिट मिले वो भी आपको नॉलेज होना जरूरी है, और किस हिसाब से आप वो चीज आप पेरोल में इंप्लीमेंट करो। देन इंटीग्रेट योर टूल्स विथ योर पेरोल। ऑब्वियसली कई बार क्या होता है, कई जगह पे कंपनियों में पेरोल तो नहीं होता लेकिन दूसरे टूल्स होते हैं, फॉर अटेंडेंस के लिए टूल्स होते हैं, मे बी द ट्रैवल के लिए टूल होते हैं, या तो क्लेम के लिए टूल होते हैं फॉर देयर फील्ड स्टाफ और मे बी देयर एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज। सो आपको वो भी ध्यान में रखना है कि मैं कोई सॉफ्टवेयर परचेस कर रहा हूँ, एग्जांपल जो भी आप एग्जांपल पेरोल एचआरएम में सॉफ्टवेयर परचेस कर रहे हो, तो वो इंटीग्रेशन फिजिबिलिटी उसमें है या नहीं है, या तो आपका अटेंडेंस मशीन उसके साथ इंटीग्रेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है, ऑटोमेशन कितना हो रहा है, तो वो सब चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी जब आप पेरोल प्रोसेस सिंप्लीफाइड करना चाहते हो तो। और लास्ट पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पिक द राइट पेरोल सॉफ्टवेयर विच बेट सूट्स योर नीड्स। यानी आपको जो पेरोल सॉफ्टवेयर आप ले रहे हो आपकी कंपनी के लिए, वो आपको देखना पड़ेगा कि वो मेरी जो नीड्स है, जो मुझे चाहिए, जो मुझे मॉड्यूल्स चाहिए, जो मेरी रिक्वायरमेंट है, जो मेरी पॉलिसी है एग्जिस्टिंग, वो क्या फुलफिल कर रही है, वो तो देखना ही है। सेकंड आपको वो भी देखना है
कि फ्यूचर एस्पेक्ट से क्या ये पेरोल में कस्टमाइजेशन हो सकता है, या तो उसमें कुछ एक्स्ट्रा मॉड्यूल्स या तो एक्स्ट्रा ऐसी कोई पॉलिसी क्या मैं इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ। तो जब आप पेरोल सॉफ्टवेयर ले रहे हो तो ये सब चीज आपको ध्यान रखने की बहुत जरूरत होती है। Now move about how Ultimatix payroll software help to streamline the payroll process. For this, Mr. Chintan Prajapati will give the further. Thank you. Thank you, Mohammed. Okay, so how Ultimatix payroll software help you to streamline the payroll processes? Mohammed, you have given a very brief to everyone that see what are the myths, what are the hurdles when we are just implementing the new softwares, or what are the challenges which you are facing when you're just using the existing software or you are moving to the new softwares. So here we'll just clarify ki how Ultimatix payroll will help you out to streamline your particular processes. Here, all the HR functions will cover in Ultimatix payroll software. We'll just start from attendance to till exit. So we'll just brief the modules regarding this. You will get the attendance module, attendance regulations modules, leave modules, loan modules, claim modules, canting modules, survey modules, probation and confirmations module. Even also see now this is a new things that employee also will get hands on HR. So उनके हाथ में भी यानी कि अब जो पेरोल आ रहा है तो ऑलमोस्ट सब लोग मोबाइल यानी कि मोबाइल टेक्नोलॉजी से अवेयर हो गए. सो इफ एम्प्लॉय कैन यूज द मोबाइल एप्लीकेशन आल्सो और वेब एप्लीकेशन आल्सो. जैसे ही वो लोग मेल यूज करते हैं वैसे ही अपना ऑरेंज अल्टीमेटिक्स यूज करेंगे, अपने मोबाइल के थ्रू भी यूज कर सकते हैं. तो अपने जो भी एम्प्लॉय रहते हैं तो उनको सैलरी स्लिप वहां पे मिल जाएगी, वो खुद लीव एप्लीकेशन खुद कर सके, यानी कि उनको हर एक चीज के लिए एचआर के पास नहीं जाना पड़ेगा. अगर उनको जो पुरानी पे स्लिप चाहिए, उनको टैक्स डिक्लेरेशंस करना है, उनको सैलरी एडवांस चाहिए, उनको जो क्लेम एप्लीकेशंस करनी है, लोन की एप्लीकेशंस करनी है, अपनी जो जैसे कि कल परसों में लेट आया था उसको अपनी खुद की अटेंडेंस रेगुलराइज करवानी है, तो एवरीथिंग्स विल बी ऑन एम्प्लॉय हैंड्स. सो एचआर के पास यानी कि जितना इंटरेक्शन हो सकेगा डायरेक्ट यानी कि वो ट्रैकिंग में भी रहेगा, और बहुत सारी चीजें जिसमें एचआर का जस्ट और टाइम इन्वेस्ट होता है और कुछ नहीं, बिकॉज इट इज क्लेरिकल जॉब. जैसे कि पे स्लिप चाहिए तो उसमें उनको जैसे जाएंगे पे स्लिप की रिक्वेस्ट करेंगे तो पे स्लिप प्रिंट आउट लेके उनको देना है. तो ये सारी चीजें एम्प्लॉय के उनके मोबाइल में या तो फिर वेब एप्लीकेशन पे ही मिल जाएगी. उनको हर एक छोटी छोटी चीजों के लिए एचआर के पास नहीं जाना पड़ेगा. इवन जैसे वो लीव एप्लीकेशन करते हैं, कहीं पे एक दो लेवल का अप्रूवल है तो भी उस सिस्टम में खुद चेक कर सकते हैं कि मैंने लीव एप्लीकेशन किया था उसका कितने लेवल के, दो तीन लेवल का अप्रूवल है तो खुद चेक कर सकते हैं कि ये कहाँ पे अटका हुआ है. सेकंड चीज, वो लोन एप्लीकेशंस करनी है तो भी वो अंदर सिस्टम में से कर सकते हैं, यानी कि लोन क्लेम कैंटिंग. अभी बहुत सारी जगह पे छोटी ऑर्गेनाइजेशन है, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन वहाँ पे कैंटीन भी फैसिलिटी होती है, तो उन्होंने जो भी कुछ खाना है तो एवरीडे उनको पेमेंट नहीं करना पड़ेगा, जस्ट वो जहाँ पे पंच करेंगे और उसके हिसाब से अगर वो लंच होगा, मील होगा, या तो फिर उसका जो ब्रेकफास्ट होगा, टी होगा, उसके हिसाब से डिडक्शंस हो जाएगा. सर्वे यानी कि इफ कंपनी वांट टू सर्वे समथिंग कि भाई नाउ डेज हॉलीडेज आ रहे हैं, हमको किस हिसाब से करना चाहिए, हमको टूर प्लान करना है तो कहाँ पे करना चाहिए, और दे वांट टू टेक सर्वे कि हम ये पॉलिसी चेंज करने जा रहे हैं, हम ये कुछ नया इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं, तो उसके रिगार्डिंग आपका सर्वे है, सजेशन है, तो दोज कैन आल्सो टेकन फ्रॉम एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज. प्रोबेशन में भी तुरंत ही एम्प्लॉय के जो मैनेजर हैं उनको पता चल जाएगा कि इसका प्रोबेशन खत्म होने वाला है, उसको एक्सटेंड करना है, कंफर्म करना है. ट्रैवल एप्लीकेशन यानी कि जैसे सेल्स स्टाफ है वो बाहर जा रहा है या तो फिर कोई भी प्रोजेक्ट टीम है वो बाहर जा रही है तो उसका ट्रैवल एप्लीकेशन वो सिस्टम में से कर सकते हैं. वहाँ पे भी आपकी जो पॉलिसी है उसके रिगार्डिंग आप ट्रैवल की लिमिट सेटअप कर सकते हो, तो उसके हिसाब से वो एप्लीकेशन कर पाएगा. इवन ऑल्सो इफ यू हैव ट्रैवल डेज तो आप उनका ट्रैवल का जो ट्रेन का है, होटल का बुकिंग भी सबमिशंस कर सकते हो, तो एम्प्लॉय ऑल्सो विल गेट अ नोटिफिकेशन. टीडीएस यानी कि टैक्स डिक्लेरेशन, जो भी एम्प्लॉय होते हैं उसके रिगार्डिंग कई कंपनी में रिएम्बर्समेंट मॉड्यूल होते हैं, तो रिएम्बर्समेंट भी वो खुद से प्लान कर सकता है. टीडीएस के रिगार्डिंग उसको जो भी डिक्लेरेशंस करना है वो उसके हिसाब से कर सकता है. सैलरी में कई कंपनी ऑटोमेशन इन द टर्म्स ऑफ द सैलरी अटेंडेंस बेस्ड होता है, कई जगह पे मैनुअल होता है, कई जगह पे सेल्स स्टाफ होते हैं.
कई जगह पे वर्कर होते हैं। तो एवरी यहाँ पे जो जितनी भी सैलरी आप यहाँ पे अलग अलग डिफाइन कर सकते हो, जैसे कि कई एम्प्लॉय फिक्स पे होते हैं, कई कॉन्ट्रैक्ट बेस होते हैं, कई एम्प्लॉय का डे बेस सैलरी होता है, कई एम्प्लॉय का मंथली बेस सैलरी होता है, कई जगह पे 26-27 के हिसाब से कैलकुलेशन होता है, कई जगह पे 30-31-28 के हिसाब से होता है। वो सारे कैलकुलेशन यहाँ पे मैच हो जाएगी हमारे पेरोल के अंदर। एग्जिट मॉड्यूल के रिगार्डिंग एम्प्लॉय खुद से अपना एग्जिट एप्लीकेशन यानी कि सेपरेशन रख सकता है। उसके बाद वो जो भी प्रोसीजर आपने डिफाइन किया है फॉर एनओसी और फॉर एग्जिट इंटरव्यू, so everything will be planned accordingly, or it is also not joining in the terms of exit also, it will be smooth processing. उसके जो भी एम्प्लॉय के रिगार्डिंग जो भी आप फीडबैक भी ले सकते हो, उसके रिगार्डिंग एचआर आल्सो कैन थिंक ओवर इट एंड दे कैन इम्प्लीमेंट द थिंग, सो दे कैन रिटेन द न्यू एम्प्लॉय आल्सो। रिक्रूटमेंट, जैसे कि नई पोजीशन आई उसको कैसे अप्रूव करना है, विद इन बजट है या नहीं है, रिक्रूटमेंट करना है, कहाँ पे आपको नौकरी में पोस्ट करना है, आपकी एग्जिस्टिंग साइट पे भी उसको आप मैप कर सकते हो, जहाँ से एम्प्लॉय अपना जो भी जॉब ओपनिंग रहेगी अपनी साइट्स पे दिखेगी, और जो भी कैंडिडेट्स रहते हैं वहां से अप्लाई कर सकते हैं। Even you can also plan for an interview, or you can finalize the candidate also based on their suitable skills. You can also plan your training from the software itself, और so भी आपकी जो भी मिनिमम स्किल और मैन पावर की जो भी ज़रूरत रहती है, या तो फिर नया जो भी आपका प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं, या तो नई टेक्नोलॉजीज आने वाली है, उसके रिगार्डिंग भी अगर आपको जो भी प्लान्स करना रहता है ट्रेनिंग्स के रिगार्डिंग और एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय को अवेयरनेस के रिगार्डिंग, वो भी आप सिस्टम में से सिस्टमेटिक वे में आप प्लान आउट कर सकते हो। पीएमएस परफॉर्मेंस अप्रेजल आल्सो तुम सिस्टम में से कर सकते हो, यानी आप अपने एम्प्लॉइज के डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट के गोल डिफाइन कर सकते हो, उनके मैनेजर से रिव्यू ले सकते हो। इवन यू कैन आल्सो मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली और ईयरली जो भी आपकी पीएमएस प्रोसेस है, जो ऑल थिंग्स विल बी गेट कवर इन Orange Ultimatic. Apart from this, few more modules are there over there. So all the policy can be configured once. आपने एक बार जितनी भी पॉलिसी है जो ऑरेंज अल्टीमेटिक्स में डिफाइन कर दी कि इस ब्रांच के लिए ये पॉलिसी रहेगी, इस ब्रांच के लिए ये पॉलिसी रहेगी, बिकॉज ऑफ आपको पता है कि जियोग्राफिक लोकेशन के हिसाब से कई जगह चैलेंजेस होते हैं, तो वो भी आप पॉलिसी डिफाइन कर सकते हो कि इन एंड आउट है, उनका अटेंडेंस का पॉलिसी है, उनकी जो शिफ्ट है, वो सारी चीज आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो। जैसे ही आपने कोई जैसे कॉर्पोरेट ऑफिस है तो वहाँ पे सैटरडे संडे वीक ऑफ रहता है, प्लांट के ऊपर 24/7 चालू रहता है, यानी कि ओनली 1 वीक ऑफ दे विल गेट। सो वॉट एवर द पॉलिसी वंस यू डिफाइन बेस्ड ऑन द ब्रांच वाइज, तो आपको हर बार एम्प्लॉय को जाके वो डिफाइन नहीं करना पड़े। जो एम्प्लॉय जहाँ पे भी हायर होगा द पॉलिसी विल गेट एप्लीकेबल एंड इट विल ऑल्सो टेक अ कैलकुलेशन इन द टर्म्स ऑफ द पेरोल प्रोसेसिंग। Also, you all are aware that the state-wise there was a different reports and different formats are there in the terms of the PT, LWF, PF, ESIC. So all the reports will be get available in a system. Also, whenever there will be new changes will get arrive, you will also get a notification that that has been changed. You will get the easily MIS report from the system कि इस महीने में टोटल कितने एम्प्लॉय ने लीव लिया है, कितने एम्प्लॉय एब्सेंट थे, कितने एम्प्लॉय ओनली PL लिया है, सिक लीव लिया है। ओके, सो हाउ मेनी एम्प्लॉयज विल गेट, उन्होंने अटेंडेंस रेगुलराइज करवाया है, कितने एम्प्लॉय लेट आए थे, कितने एम्प्लॉय जल्दी चले गए थे। जैसे कि हमको कोई फंक्शन करना है तो उसके रिगार्डिंग भी हमको पता चल सकता है कि लोकेशन वाइज हमारी स्ट्रेंथ क्या है, डिपार्टमेंट वाइज स्ट्रेंथ क्या है, so that we can easily all the MIs will get available in a system. Also you can come to know कि डिपार्टमेंट वाइज तुम्हारा कॉस्ट कितना है, डेजिग्नेशन वाइज तुम्हारा कॉस्ट कितना है, ब्रांच वाइज तुम्हारा कॉस्ट कितना है, what are the your statutory cost and what is the employee cost, so all the things will get available in a single click. जैसे मैंने बताया कि आप जैसे कि आजकल जैसे मोबाइल सबके पास रहेगा, तो आप जो भी पॉलिसीज है, जब भी कोई भी नई पॉलिसीज में कोई भी चेंजेस आते हैं, यू कैन ऑल्सो अपलोड इन योर ऑरेंज अल्टीमेटिक्स एंड इट विल गेट नोटिफाइड इन देयर मोबाइल और वेब एप्लीकेशन। सो कोई भी पॉलिसीज में अमेंडमेंट होता है तो एम्प्लॉय डायरेक्ट वहां से अपना एम्प्लॉय हैंडबुक्स वहां से रिफर कर सकता है, चेक कर सकता है। ग्राफिकल रिपोर्ट ऑल्सो विल अवेलेबल इन ऑरेंज अल्टीमेटिक्स। सो मैंने जैसे बताया कि हाउ इट विल बी स्मूथ HR फंक्शन थ्रू द ऑटोमेशन कंसल्टेंसी। हाँ,
इफ यू अगर ऑरेंज अल्टीमेटिक्स लेते हो तो हम आपको गाइड भी करेंगे जहाँ पे आपको रिक्वायर है कि how it will get beneficial to the organizations and to the employees. So we have a 18 years plus experience, so we will just guide you because of we have implemented so many payrolls. So in the terms of if you want to go for a standardizations, you can take a suggestion from our end also. और स्मूथ प्रोसेसिंग इसलिए मैंने जैसे बताया कि अगर आपकी डिफरेंट डिफरेंट ब्रांच वाइज डिफरेंट डिफरेंट पॉलिसी है तो भी आप सारी जगह का पेरोल एक जगह बैठ के आप रन कर सकते हो, वो भी डिफरेंट डिफरेंट पॉलिसी के थ्रू. We, as I told you already, that HRMS module जैसे कि recruitment training, PMS and the mobile application. तो जैसे स्मार्टफोन हर जगह अवेलेबल है तो वो लोग स्मार्टफोन में अपना एप्लीकेशन डाल सकते हैं और दे विल हैव एक्सेस ऑफ ऑल द थिंग्स. नाउ why Ultimatix Advanced Payroll Softwares? As I told you, we have 18 years plus experience in the payroll software. We have more than 800 plus live client across the India and globally also. Multiple payroll software like solutions to cater to all the categories of the client. Like we have the desktop payroll, we have the cloud solutions, we are providing the on-premises solutions integrated with the most of the biometric attendance machine. अगर आप कोई भी attendance machine आप use कर रहे हो तो we have the 18 years experience and we have the solution provider that we can integrate any biometrics machines because we have deal with all the companies. We also done the ERP integrations, यानी कि जहाँ पे ERP चल रहा है बट वो पेरोल प्रोसेसिंग हमारे पेरोल और अल्टीमेटिक्स में करना चाहते हैं तो उसमें भी we have third party integrations we have done with all the most of the ERPs. JV posting जैसे कि सैलरी का पोस्टिंग करना है तो वो भी है, we have already done the integrations with the Microsoft Navision, SAP and the other third party tools. Proven the solutions for all the industries like manufacturing, pharma, automobiles, textiles, ceramics, and etc. etc. More than 1 million payslip already generated for all the companies like a small, mid-size, or large size. We have given a solution to the Ultimatix home payroll software desktop. So अगर जैसे मोहम्मद ने बताया कि किसी का मिड साइज कंपनी है तो वो डेस्कटॉप पेरोल लेके भी स्टार्टअप कर सकते हैं. ओके, फ्रॉम 2 एम्प्लॉय टू 200 एम्प्लॉयज. अल्टीमेटिक्स एडवांस पेरोल सॉफ्टवेयर क्लाउड बेस्ड, यानी कि जैसे कि उन्होंने बताया कि अगर आपके पास आईटी टीम नहीं है, आपके पास सर्वर अवेलेबल नहीं है तो आप क्लाउड सॉल्यूशंस ले सकते हैं. वी आर प्रोवाइडिंग आल्सो क्लाउड सॉल्यूशंस. अगर आप 2 एम्प्लॉय से लेके 500 तक का कोई जितने भी एम्प्लॉयज है अगर उसके रिगार्डिंग आप क्लाउड सॉल्यूशंस लेना चाहते हो तो वो भी हो जाएगा. और इन फ्यूचर अगर वो जो क्लाउड सॉल्यूशन है आपको इन प्रीमाइसेस में रखना है तो भी आप उसको कन्वर्जन कर सकते हो, या तो फिर आपके 500 एम्प्लॉय से एम्प्लॉय बढ़ भी जाते हैं तो उसके रिगार्डिंग भी आप लाइसेंस अपग्रेड करवा सकते हो. Ultimatix advanced payroll solutions, it means if you have your IT facility at your premises, अगर आप खुद सारी चीज मेंटेन कर सकते हो तो उसके रिगार्डिंग we are providing the in premises solution also. It means आपका जो भी हमारा सॉफ्टवेयर रहेगा वो आपकी प्रीमाइसेस में इंस्टॉल होगा और वहां से आप यूज कर सकते हो. और सबसे बड़ी बात है कि जैसे आप डेस्कटॉप पेरोल है तो सिंगल लोकेशंस और एक जगह से एक्सेस हो सकता है, बट इफ यू जस्ट प्रोवाइड यू आर टेकिंग द क्लाउड सॉल्यूशन और ऑन प्रीमाइसेस सॉल्यूशन, यू कैन एक्सेस फ्रॉम ग्लोबली एनीवेयर एल्स. आप कहीं से भी उसको यूज कर सकते हो. हैंड ओवर टू मोहम्मद. We have one poll for you. मोहम्मद लास्ट ये स्लाइड आपने देखी जरा. Currently, just we are organized one poll, then we can start further. Okay.
please provide your input for this poll. Okay, so thank you, Chintan bhai. So we can process further. So what are the other products and services apart from payroll and HRMS software? These are the other our product and services we are also dealing. First is attendance machine, biometric attendance machine. We also dealing with the multiple attendance machine like maybe the finger based RFID card, then face based attendance machine. Due to COVID, now most of the company want face based solution. So we have a that solution, advanced solution. Even you can also capture the temperature as well as mass deduction, right? So these are the, you can say, the advanced attendance machine that we have, and that is directly integrate with your payroll solution. Okay. Second, we also have a asset management software that you can like calculate your depreciation appreciation of the assets for multiple location, and you can get the reports as per the like maybe the accounting point of view or the finance point of the view. Then third, we also having the customized solution. If you have any specific requirement as per your business process, so you have any specific requirement, maybe the application related, maybe the website related, or you want the CRM, customized CRM software for your organization. So we also have a dedicated team for that. Fourth one, canteen management. We also have a canteen management solution. If you require any like the canteen reports, maybe the time wise or maybe the multiple menu wise reports, so we have a solution, canteen management software. And last, we also having the visitor management software. If some company have the like the, you can say the, they want the records of the visitors for digitalized way, right, to capture the data. So for that we have a visitor management software, right? And even you can operate multi location for single software. Okay. And the recently Orange Technolab is official business partner with Tata Teleservices, and Tata Teleservices have multiple products, and we recently have the business partner, and they have around, I just give you the products of the Tata Teleservices. First is you can go for the related to the data, then you can go maybe the voice, then cloud solution, then cloud CRM, then you can go for the, you can say the cloud software related to the maybe the uh, delivery management. So these are the some product of the Tata Teleservices. And after maybe the week or maybe the 2 week, we are also introduce the Tata products webinar. What are the services we are cover? Okay. And now these are the our esteemed customer who are using our product, maybe the payroll, HRMS, or maybe the attendance solution. Okay. So you already know the well-known name Sera, Wonder Cement, Amul, Toto, Sales India, right? Aman Apollo. So if you see the customer base, all industry we have covered, maybe the pharma industry, or you can say the manufacturing industry, then you can see the transportation industry or FMCG industry, right? So the Ultimatix Advanced Payroll HRMS, it's you can say the applicable for all the industry, and we have the proven solution since 18 years, right? So we have expertise for the payroll HRMS solution, and around more than 800 live customers that are using our payroll HRMS. Now let's have a you can say the question answer session, and I'm hand over to Miss Sonia. Thank you so much, Mohammed. If anybody has any query related to any kind of policy or queries related to today's session, please do let us know your concerns. Or if you want to raise your hand, just simply raise the hand. I'll unmute you.
I'm taking few of the names. Miss Anjali is there, Miss Anjali Bambole. Is there any question from you, Miss Anjali? Hello. He left. Okay. So, thank you so much, guys, for attending today's session. If you have any queries or concerns related to the payroll solution or any policy you need any guidance from us, do let us call on the number which we have displayed on the screen, or you can directly email us on the two email IDs. So, thank you so much, guys, for joining this session. Hope you liked the session. Thank you. Thank you. But no,